So students, we are talking about the lesson The Enemy. Paul S. Buck ने इसको लिखा है. Sidney Streeter, Pearl Sidney Streeter Buck. She was American poet actually. और ये कहानी कब की है? What is the background the story? Background है Second World War का. You all know Second World War कब हुई थी? ठीक है? There was war between two countries. दो countries के बीच की war है. One country is कौन सी है? America. Japan and America. America and Japan, you can say. Japan, you can say. So there are certain questions which have been discussed. What are those questions? Let us see. Whether you should help. मेरे ख्याल से आपकी समझ में बात आई नहीं है. So students, what question is there? Will you go with human approach? You know, एक approach होती है humanity की, and और एक approach होती है कि आप patriot हो या नहीं हो. You are patriotic or not. Clear? अब ये कैसे पता चले? कैसे हम ये कह सकते हैं कि कौन सा concept बड़ा है? Which concept is bigger? Humanity is bigger or patriot is bigger? Which concept is bigger? This we have to see actually. Humanity and patriotism. We are a citizen in our country. हम क्या हैं? Citizen हैं. And we have some duty towards our country. Okay, our country is our motherland. जैसे हम कहते हैं भारत माता की जय. तो our country is our motherland. ये motherland है. इसके लिए भी हमारी कोई duty है. We are citizen. We have been given recognition by our country. We are Indians. हम कहीं भी जाएंगे तो हमारी एक पहचान है. वो पहचान है कि we are the Indians. This has been given. We have to be patriotic. तो अब देश के लिए हम क्या बन जाते हैं? कंट्री के लिए हमारी लॉयल्टी क्या होती है? पैट्रियोटिक हो जाते हैं. फिर आता है कॉन्सेप्ट और है ह्यूमन कॉन्सेप्ट. When we talk about humanity, so we think there is no boundary in the world. दुनिया में कोई बाउंड्री नहीं है. जो इंसान ह्यूमनिस्ट होता है, he thinks that in whole world there is no boundary, there is no border. All are human beings. All have right to live. All have right to be alive, to grow, and there should be brotherhood. There should be fraternity all over the world, and people should not fight with each other. This is humanist approach. So this lesson talks. What is the question? The question is, two countries, America and Japan, they both are at war. Clear? दोनों वॉर पे हैं. What happened? There was a Japanese doctor. His name Dr. Sadao. He was a Japanese doctor. Okay. This doctor studied in America. You see, 8 years. This doctor studied in America. He studied surgery there. He became a doctor. He became a great big surgeon. And then he came back to Japan. And then started Second World War. Clear? When they were at war, what happened? A prisoner of war, POW I'm writing, prisoner of war escaped. Escape क्या होता है? भाग जाना, छूट के भाग जाता है इंसान. तो prisoner of war escaped and he reached the doorstep of Dr. Sadao. He reached doorstep of Dr. Sadao. ठीक है? Dr. Sadao, his wife is also there. Her name is Hana. So this is the couple, Dr. Sadao and his wife Hana. She also studied in America. Dr. Sadao studied in America. When that prisoner of war, who was an American, now question is there, कि why should we help our enemy? हमारे दुश्मन की मदद क्यों करें हम? Why should we help? We will not help. If we want to be loyal to our country,
If we want to be loyal to our soil, we will not help. लेकिन क्या इससे आगे का रास्ता भी है, ये सवाल है। अब इसको, ये जो बंदा है, he is injured, badly injured, he has been shot in his back, यहाँ पीछे के हिस्से पे उसको गोली लगी हुई है। किसको? प्रिजनर ऑफ वॉर को। ही इज एन अमेरिकन। अब डॉक्टर सदाव के सामने क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। डॉक्टर सदाव थिंक्स that he is a wounded person. Wounded means injured, घायल। He is a wounded person. If he is not treated, surely he will die. And he is a doctor. He has been taught not to let be died before his eyes. This doctor had been taught by his professors, by his teachers. What he had been taught, that no one should die before his eyes. If he could save, ये बचा सकता है तो उसके सामने कोई मरे नहीं। तो if as a doctor की बात करेंगे, individual duty, we have our individual duty also. We have a duty towards the country also. So now he thinks I should save this person because he is injured. He is just an injured person, nothing else. कुछ नहीं है, केवल एक घायल आदमी है। एंड आई एम अ डॉक्टर। अ डॉक्टर इज ट्रेन्ड टू सेव द पेशेंट, टू सेव द इंजर्ड पर्सन। नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर। नाउ ही शुड सेव हिम और नॉट। Question arises, he wants to go with his duty, but there is another duty, or that duty is towards his country. Saving, to save this person, that is duty, individual duty. This is, we can say, humanist, this humanity is there. Whosoever comes before you, you must treat that person. But he has a duty towards his country. He is a citizen of Japan. He has to become patriot also. A person is patriot when he is loyal to his country and he doesn't help enemy country. So if he helps this person, it means he is helping America. And if he is helping America, it means he might be treated as a traitor. ये ट्रेटर क्या होता है? ट्रेटर होता है गद्दार, देशद्रोह जो करता है, देशद्रोही आदमी को हम कहते हैं ट्रेटर। तो अब क्या करे वो? If he doesn't treat the American person, he doesn't treat the prisoner of war, it means he fails the duty as a doctor. And if he treats, then there is a problem that he might be arrested, his career might also be finished, he might be treated as a traitor, and he might be sent to jail. Getting my point? This is the question. Now both doctor and his wife Hannah, doctor and his wife Hannah, doctor and his wife Hannah, both first they decided to leave him. एक बार तो ये भी कोशिश की कि इसको उठा के वापस फेंक देते हैं, कहाँ? पानी में, मरेगा तो मर जाएगा। लेकिन दोनों की हिम्मत नहीं हुई। वो उसका वेट कर रहा है, वो उसका वेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर ये ह्यूमैनिटी है, काइंडनेस है, जिसको दया कहते हैं, काइंडनेस है, दोनों के अंदर है ये। फिर ये डिसाइड हुआ, डॉक्टर ने कहा कि भाई मैं इसका एक समाधान निकालता हूं। उसने कहा आई विल टेक हिम इनसाइड द हाउस, दिस पर्सन विल बी टेकन इनसाइड द हाउस। हम इसको पहले पे क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। ही विल बी ट्रीटेड, ट्रीटमेंट देंगे उसको। ओके, आफ्टर ही हैज बीन सेव्ड, means after, while giving treatment to him, while treating him, one duty will be over, a duty of a doctor. Then he said after he has been treated, we will send him to the police. यानी पहले तो ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट करने के बाद उसको क्या करेंगे? hand him over to police. भाई अथॉरिटीज को बता देंगे कि भाई ये आदमी है, ये आया था। This was their plan. तो क्या कहें इस चीज को कि भाई वो डॉक्टर गलत कर रहा है, सही कर रहा है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। यही तो सिखाना है। इस लेसन का थीम यही है कि हमें क्या करना चाहिए।
We should go with the doctor's approach of saving that patient, or we should go with the doctor's approach handing him over to the police. किसके साथ जाए? तो एक्चुअली उसने डिसीजन लिया. इट वाज वेरी कह सकते हैं कि वेरी फेटल डिसीजन, डेंजरस डिसीजन था उसके लिए. ठीक है, खुद के लिए उसकी रेपुटेशन गायब हो सकती थी. अब वो अंदर जब आता है, व्हेन ही कम्स बैक, उसको लेके आ गए दोनों के दोनों. He was around 25 years or 20-25 years. That boy कह सकते हैं, छोटा ही था वो. He was a soldier जिसके he was shot in his back, और वो वैसे भी घायल हो गया था. क्योंकि कैसे था, जो था, मान लिया ये यहाँ ये सी है इतना बड़ा, और सी के किनारे पे यहाँ पे बड़ा सा रॉक है, एक रॉक था, यहाँ से सपोज लैंड शुरू होता है, तो समंदर यहाँ खत्म हो गया, तो एक रॉक है, उस रॉक के ऊपर जो ना मकान बना हुआ है, इसका डॉक्टर सदाव का. अभी पहुंचा कैसे था उस तक? इस समंदर से वो बंदा आता है. He was washed ashore. Washed ashore मतलब लहरों में बह के वो आता है और यहाँ आ जाता है. तो अब उसको अंदर लेके जाए तो उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि उसके घर में कौन कौन है. डॉक्टर है, इस वाइफ है जिसका नाम है हाना, ठीक है, चाइल्ड, छोटा सा बच्चा भी है. क्लियर? अब इनकी कोई दिक्कत नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि उनके पास सर्वेंट्स हैं. क्या है? सर्वेंट्स. और ये जो सर्वेंट्स हैं उनके, ये जो सर्वेंट्स हैं, ये कौन कौन है? सर्वेंट्स कौन कौन है? एक तो है गार्डनर, एक है कुक, और एक है अटेंडेंट. हम कह सकते हैं मिडवाइफ कहते हैं, दाई कहते हैं, या बच्चों आया कहते हैं, जो बच्चों को संभाले, जिसका नाम है यूमी. एक ये लड़की. सो ये जो है, ये जो जैसे गार्डनर है, he has been with his family since Dr. Sadav was a child. डॉक्टर सदाव जब छोटा सा था, उसके बचपन से जो है ना ये यहाँ काम कर रहे हैं. अब ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते. These people, domestic help, इनको क्या बोलेंगे हम? डोमेस्टिक हेल्प कहेंगे, नौकर चाकर कुछ भी कह सकते हो, या डोमेस्टिक स्टाफ कह सकते हैं, जो घर का काम करता है. अब ये जो डोमेस्टिक स्टाफ है, ये बिल्कुल अगेंस्ट है. तो डॉक्टर उसको ले तो आया अंदर, द डॉक्टर ब्रॉट हिम. सो व्हाट हाना ने क्या किया, हिज वाइफ हाना, शी वेंट टू यूमी, और यूमी से कहा कि इसके बॉडी को क्लीन करो, क्योंकि ही वाज डर्टी एंड ही वाज शॉट, ही वाज अनकॉन्शियस. प्रिजनर ऑफ वॉर जो है, उसको नहीं पता वो कहां पड़ा हुआ है. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा वॉश करना था. यूमी ने मना किया, उसने कहा कि आई विल नेवर डू दैट. हालांकि हाना ने एज ए मिस्ट्रेस, क्योंकि वो उनकी मिस्ट्रेस है, उनको नौकरी पे रखा हुआ है, उनको सैलरी देती है, उसको दोष जमाने की कोशिश की. शी ट्राइड टू स्पीक इन अ हार्श टोन कि नहीं, यू डू इट, आई ऑर्डर यू. लेकिन फिर भी हाना, यूमी ने मना किया, बोले कि नो, आई वुड नॉट डू दैट. तो अब ये हाना जो है खुद ही इसको, बंदे को, इसके शरीर को क्लीन करती है. लेकिन एक खास बात ये है कि हाना डजंट लाइक हिम, डॉक्टर सदाव डजंट लाइक हिम. ये दोनों के दोनों इससे हेट करते हैं, लेकिन फिर भी उससे हम बचाते हैं. हाना doesn't want to save this person, she doesn't even want to see his face. डॉक्टर सदाव also, डॉक्टर सदाव यही करता है कि I don't even know why I am saving you. मुझे नहीं पता मैं क्यों आपको बचा रहा हूं. I don't want to save you. You must die because you are an American. You are the enemy of our country. You must die, but I am saving you. Don't know why. तो ये भी confused है, but he is saving. क्या कंफ्यूजन है? अरे कोई कंफ्यूजन नहीं. कंफ्यूजन एक है, उसके अंदर की जो ह्यूमैनिटी है, उसके अंदर की जो काइंडनेस है, वो उसको मजबूर कर रही है कि इस आदमी को बचाओ. यू आर अ डॉक्टर, योर ड्यूटी इज टू सेव दिस पर्सन. इसलिए तो ये सारे के सारे लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं. क्लियर? देन व्हाट हैपेंड? That person was treated. Dr. Sadao was a skillful person. उसने उसको सेव किया. He saved him. उसको बचाया उसने. और बचाने के बाद में when he was okay, तो ये domestic staff कहते हैं okay, now let him go. अब इसको भगाओ यहाँ से. लेकिन डॉक्टर सदाव was not in a condition to take decision.
फर्स्ट ही थॉट टू राइट अ लेटर टू द अथॉरिटीज, उसको सोचा कि मैं लेटर डाल देता हूं, लेकिन लेटर डालने से पहले उसके दिमाग में कुछ आया, लेटर नहीं डाला, उसने लेटर को वहीं रख दिया। फिर ये सारे के सारे जो डोमेस्टिक स्टाफ था उसका, डोमेस्टिक स्टाफ, ये क्या हो गया, ये डोमेस्टिक स्टाफ उसके घर को छोड़ के चला गया। अब घर का सारा काम भी किसको करना पड़ा, डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ हाना, इन दोनों को करना पड़ गया। somehow time was passing। फिर क्या हुआ, जैसे जिस दिन ये गए थे सारे के सारे, एक सोल्जर आया, ठीक है, कौन आया, अ पर्सन हु वाज इन सोल्जर्स यूनिफॉर्म, एक सोल्जर आया, और जब डॉक्टर सदाव के घर आया तो हाना उसको देख के डर गई। हाना थॉट दैट these people they have informed the authorities and he might have come to arrest, but it was not so। actually ये जो सोल्जर आया था, ये डॉक्टर सदाव को कॉल करने आया था। क्यों कॉल करने आया था, क्योंकि जो जनरल था, जनरल का नाम था ताकीमा, जनरल ताकीमा, सेनाओं का जो जनरल था, ही वॉज इल, वो बीमार था। अब एक्चुअली वॉर चल रही थी, इसमें एक पॉइंट और है जो मैं आपको बताऊं कि वॉर तो चल रही थी, और जब वॉर चलती है तो क्या होता है, डॉक्टर्स को बॉर्डर्स पे भेजा जाता है, लेकिन डॉक्टर सदाव को रोक लिया गया था, डॉक्टर सदाव वाज स्टॉप्ड। दो रीजन से रोका गया था, एक तो डॉक्टर सदाव वाज वर्किंग ऑन अ मेडिसिन व्हिच वाज नेसेसरी फॉर हीलिंग द वुंड्स, घाव को भरने के लिए ऐसी कोई दवाई बना रहे थे जिससे घाव जल्दी भर जाए। सेकेंड, ये खुद आदमी बीमार था एंड ही कुड नीड एनी डॉक्टर, he could need doctor at any time। तो इसने किसको चुना, जनरल ताकीमा ने डॉक्टर सदाव को ही चुना। अब फिर से क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर सदाव को ही क्यों चुना। जनरल ताकीमा ये मानता है कि a doctor who is trained in America, he is better than the doctor who is trained in Germany और जापान। तो जर्मनी जापान तो एक ही थे उस टाइम पे, थॉट तो एक ही था, उनकी सोच तो एक ही थी। जनरल ताकीमा खुद ये मानता है कि जो डॉक्टर अमेरिका में ट्रेंड होता है वो बेटर होता है, क्योंकि जो अमेरिका में ट्रेंड दोनों ही चीजें रखता है, वो सेंटिमेंटल भी होता है। क्या होता है, ये बार बार में स्क्रीन ऑफ कर देते हैं सर, ये इट्स ओके सर, कोई बात नहीं। देखो जनरल ताकीमा ने किसको बुलाया, डॉक्टर सदाव को। तो एक तरीके से देखो डबल स्टैंडर्ड सा है, अमेरिका से नफरत करता है, डॉक्टर वही चाहिए जो अमेरिका ट्रेंड है। तो व्हेन जनरल ताकीमा ने डॉक्टर सदाव को बुलाया, डॉक्टर सदाव ने जब इस जनरल ताकीमा का ट्रीटमेंट किया, सो एट दैट टाइम डॉक्टर सदाव टोल्ड एवरीथिंग टू जनरल ताकीमा, इसको बता दिया उसने। ही डिड नॉट इन्फॉर्म द अथॉरिटीज बट ही टोल्ड इन्फॉर्म्ड जनरल ताकीमा, उसको बताया कि सर एक प्रिजनर ऑफ वॉर जो है, एक प्रिजनर ऑफ वॉर जो कि अमेरिका का है, वो मेरे दरवाजे पे आ गया एंड आई ट्रीटेड हिम, नाउ आई वांट टू हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, टू द अथॉरिटीज। जनरल कहता है भाई यू मे बी ट्रीटेड एज एन ट्रीटेड, यू माइट बी पनिश फॉर दैट, आपको पनिश किया जा सकता है इस चीज के लिए। तो लेकिन जनरल ने कहा कि कोई बात नहीं, नथिंग विल हैपन टू यू, आई विल सी, मैं देख लूंगा, सब कुछ संभाल लूंगा, आप एक काम करो, यू डू नथिंग, यू गो होम एंड कीप द डोर ओपन, I will send my assassins। ये assassins क्या होते हैं, assassins क्या होते हैं, assassins होते हैं जिनको, ऐसे किलर्स होते हैं, प्रोफेशनल किलर्स, जिनको रखा जाता है स्पेशली अपने काम कराने के लिए। तो उसने कहा मैं अपने assassins, I will send my men, they would go and they would kill that person। उसको मार देंगे और मारने के बाद क्या करेंगे, उसकी बॉडी को भी ठिकाने लगा देंगे। तो जनरल ने डॉक्टर सदाव से कहा, डॉक्टर सदाव आ गया, इट्स ओके। अब वो क्या हुआ, फर्स्ट नाइट ही केप्ट वेटिंग, नोबडी केम, रात भर सो नहीं पाए, he was not able to sleep properly, he could not take sound sleep, it was disturbing environment outside। और बार बार उसको लगता है, हल्की सी आवाज में लगता है कि हाँ शायद अब उसके आदमी आए होंगे और जो है ना उसको मार डालेंगे। बट नेक्स्ट डे व्हेन ही वेंट टू दैट पर्सन्स रूम, जब वो अगले दिन प्रिजनर ऑफ वॉर के रूम में जाता है, जिसका नाम था टॉम, इसका नाम था टॉम, इसके रूम में जाता है, तो ही फाउंड हिम देयर,
यानी उस रात को असैसिन्स नहीं आए, जनरल ने नहीं भेजे। He thought, okay, it's okay. This night might be the night when they come. ये हो सकता है। अब हुआ क्या कि उस रात को भी वो नहीं आए। Then the third night came. On third night also they did not come. Third night को बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा disturbance था। It was lightning outside. बिजलियां कड़क रही थी, लेकिन फिर भी वो नहीं आए। अब नहीं आए तो वही क्या करे? तो इस बंदे ने एक डिसीजन लिया, डॉक्टर सदाव ने एक डिसीजन लिया। उसने क्या किया, अगले दिन इस प्रिजनर ऑफ वॉर को अपनी बोट दी। He gave him his boat, he gave him food, he gave him quilt, he gave him water, सारी चीजें खाने पीने की दी और कहा कि भाई यहाँ से उधर चला जा, वो आइलैंड है उस पे पहुंच जा, वहां से साउथ कोरिया के शिप आएंगे और वहां से निकल जा। तो अल्टीमेटली क्या किया, डॉक्टर सदाव ने प्रिजनर ऑफ वॉर यानी उस अमेरिकन को भगा दिया। फिर देन अगेन ही वाज टोल्ड, डॉक्टर सदाव जब फिर से जनरल के पास जाता है, क्योंकि जनरल का उसने ऑपरेशन किया हुआ था, क्योंकि ही वाज इल। तो जनरल ने पूछा कि भाई क्या हुआ उस आदमी का, तो इसने कहा सर वो तो भाग गया, ही रैन अवे। अब ये जनरल कहता है कि भाई क्यों, मैंने कहा नहीं था कि मैं भेजूंगा, आदमी भेजूंगा। फिर जनरल खुद कहता है कि नहीं, आई कुड नॉट सेंड, ऐसा मत मानो कि मैं देशभक्त नहीं हूं, अगर मैंने आदमी नहीं भेजे तो डू नॉट थिंक दैट आई एम नॉट ऑनेस्ट टू माई कंट्री, या इट इज डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर सदाव कहता है जनरल से कि नहीं जनरल साहब, आप तो बहुत देशभक्त आदमी हो, आई स्वेयर बाय योर पेट्रियटिज्म, मैं तो आपकी देशभक्ति की कसम खाता हूं और आप बिल्कुल सही हो। तो जनरल ये कहता है कि भाई वो ये स्टोरी जो है बाहर नहीं आनी चाहिए, नो वन शुड कम टू नो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड द थिंग्स वर वहीं के वहीं हश्ड अप कर दी गई। फिर ये आता है शाम को, he went to his home, he was quite relaxed, क्योंकि उसका जो पेशेंट था यानी प्रिजनर ऑफ वॉर वो जा चुका था, वो उस आइलैंड से भी निकल चुका था, यानी सेफली ही हैड रीच्ड हिज लैंड, अमेरिका पहुंच चुका था। तो दिस इज अ स्टोरी। अब कहानी ये कहती है कि क्या है, हम इसको क्या कहें, डॉक्टर को क्या कहेंगे, डॉक्टर कैसा आदमी था? डॉक्टर एक गद्दार आदमी था, डॉक्टर एक पेट्रियोटिक आदमी था, डॉक्टर एक ह्यूमैनिस्ट था जो कि ह्यूमैनिटी में बिलीव करता था, क्या था ये? अब उस डॉक्टर को अब सजा दें तो किस आधार पे दें और नहीं दें तो किस आधार पे नहीं दें, ये हमें एनालाइज करना, ये हमारे दिमाग को टटोलता है, ये हमें देखना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस वाज द स्टोरी। चलो आप में से किसी का कोई सवाल है आप मुझे पूछ सकते हैं। ये स्टोरी थी, आगे इसको फिर से इसका टेक्स्ट रीड करेंगे। बताओ भाई, किसी का डाउट है जल्दी से पूछ सकते हो, हमारे पास 1 मिनट 30 सेकंड बाकी है। अंकुश, सो आई थिंक यू डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग। मेरी आपकी आवाज नहीं आ रही किसी की भी। अंकुश, शुभम, हर्ष, हर्षित? यस सर। हाँ, कोई डाउट, कुछ यू वांट टू आस्क एनीथिंग? हाँ सर। तो आप इस लेसन को रीड करो, आज ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। इट्स लॉन्ग लेसन, इसको कंप्लीट कर लेंगे आज, और आफ्टर कंप्लीटिंग इट वी विल अगेन डिस्कस, फिर से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो अपनी क्लास को मेंटेन करते हैं यहीं पे। आई एम वाइंडिंग अप द क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच। Yes, sir.